इसमें तरुण ये है कि ये फियर एंड ग्रीड वाली इमोशन मनी को लेकर के दिस इज यूनिवर्सल। ये कोई इंडिया में इंडियंस का अलग सा रवैया नहीं है। सर आजकल सेबी ना रेगुलरली कुछ ना कुछ मूव्स कर रहा है। मैनी एडवाइजर्स फील ओवरवेल्म्ड बाय फ्रीक्वेंट रेगुलेटरी चेंज। फ्रॉम योर वेंटेज पॉइंट, व्हाट इज द रियल इंटेंट बिहाइंड सेबीज? जय, तो आज इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जिस जगह है वो सेबी की वजह से है और रेगुलेशंस की वजह से है। हर कोई फील्ड में एक इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट रहना जरूरी है। यानी कि जब मार्केट में सेल लगे परचेज करे। बिल्कुल सही बात। मार्केट की सेल जब मॉल्स में सेल लगती है उसको अवॉइड करके इस सेल में इन्वेस्ट करे। बिल्कुल। किसी के बैंक से पैसा लूट गया, यूपीआई गलत क्लिक कर गया और मेरा पैसा खो गया, मुझे कुछ स्कैम हो गया, पैसा निकल गया बैंक से। आपने कभी म्यूचुअल फंड में सुना है? नहीं होता। कभी नहीं होता हूँ कि जितने भी कैंपेन्स चले, जितने भी हम लोगों को बताए, हम इन्वेस्टर अवेयरनेस कहाँ क्या करना है, प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट क्या होता है, ये सिखाने से ज़्यादा अगर ये सिखाए कि आपके लिए ये जो लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए आप एक ट्रस्टेड एडवाइज़र, एक क्वालिफाइड एडवाइज़र के पास आप सलाह लें, ये शायद मेरा एक उम्मीद है और एक होप है कि ऐसा हो जाए तो इंडियंस विल बेनिफिट अ लॉट। जैसे आजकल आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स को लेके, रिटर्न्स को लेके, यूनिट्स को लेके कई इन्वेस्टर्स एज वेल एज देयर मेनी एडवाइजर्स जिनको कंफ्यूजन चल रही हैं। टू आंसर दोज क्वेश्चंस वी हैव मिस्टर अजीत मेनन, सीईओ ऑफ पीजीआई म्यूचुअल फंड्स। लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। सो सर, जस्ट वांट टू नो व्हाट इज पीजीआईएम म्यूचुअल फंड कंपनी? Okay, so PGIM is actually, you could say that it is a short form for Prudential Global Investment Managers. This is Prudential of America. So PGIM is actually a part of Prudential of America. Prudential is a 150-year-old company from the US. It in fact finished 150 years this year. It is amongst the, or probably the 10th or 11th largest asset management company from the US. It manages about $1.4 trillion की assets manage करते हैं Prudential. तो आप अगर देखें तो आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो इंडिया में है close to 72 lakh crores, close to about maybe $800 billion or so. This is one single company which actually manages much more money globally. Of course, we have been here since 2010 और हमने 2019 में ये ब्रांड को चेंज किया to make sure that it is PGIM, Prudential Global Investment Managers. So a very large company, more than 140 professional fund managers all across the world, more than 45,000, more than 1,400 professional managers all around the world, more than 45,000 employees all around the world. It does everything from mutual funds to private equity to otherwise private credit, real estate, quantitative solutions, बहुत सारा है. But it is focused on insurance and investment management. तो ये हमारा बड़ा strength है इंडिया में भी कि we can look to them for a lot of the expertise of how to manage money for our customers here. So it's not as well known here in India as yet, but it is one of the largest companies in the world. So there is one more company, sir, whose name is Prudential, who use Prudential. Yes. So are you the same or you're different? No, I think most people in India would be familiar with ICICI Prudential, and I think this is of course Prudential of the UK. They are also a very old and very large and obviously a very respected company as well. It is just that they have been in India longer than us, so they have been there as ICICI Prudential, and so that there is no confusion or whatever. And globally, anyway, we are called PGIM, so people don't recognize us also as Prudential. But the fact is that there are two Prudentials, and they're totally different. They're not connected to each other. One is the UK Prudential, which is what you know as ICICI Prudential, and one is us, which is the US Prudential. In India, we are known as Prudential Global Investment Managers in mutual funds, and we are known as Pramerica on the insurance side. Great, sir. This is something really new. Now, sir, you have often emphasized behavior over returns. Yes. How do you build investor trust in a country like India, where fear and greed dominate most financial decisions? इसमें तरुण ये है कि ये फियर एंड ग्रीड वाली इमोशन मनी को लेकर के दिस इज यूनिवर्सल। ये कोई इंडिया में इंडियंस का अलग सा रवैया नहीं है। ये पैसे को लेकर के सारे लोग जो है, दुनिया भर के लोग, फियर और ग्रीड का इमोशन सब पे प्ले होता है।
हाँ, इंडिया में आप कह सकते हैं कि और या आप वर्ल्ड की भी सिचुएशन ले, आप देखिए कि किसी भी अडल्ट को दो चीज होनी चाहिए जो उनको सारी मतलब कंट्रोल में रहनी चाहिए। दो चीज का अगर कंट्रोल रहे तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक सक्सेसफुल अडल्ट हो। और ये दो चीज है, हेल्थ और वेल्थ। और ये चीज हमें स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। तो क्या होता है कि जब हम काम करने लगते हैं, हम नौकरी करते हैं, प्रोफेशन करते हैं अपना, तो जब हमारा पास पैसा आता है तो हम अपने दोस्तों को बिरादरी में देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर रियल एस्टेट का हवा चल रहा है तो हम लगते हैं उसके पीछे, अगर बिटकॉइन का लग रहा है तो हम लगते हैं उसके पीछे, अगर इक्विटी का लग रहा है तो हम उसके पीछे लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे लिए क्या सही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है इमोशंस का होना जाहिर है कि हम फियर और ग्रीड के साथ चलते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता, ये सीखा नहीं है हमने, लिटरेसी उस हद तक नहीं है कि हमें इसका एडवांटेज कैसे लेना है और इसका सही तरीका क्या है। अब जैसे कि एक डॉक्टर है तो वो खुद पे तो सर्जरी नहीं करेगा, है ना। और आप दवाइयाँ लेंगे तो आप कोई भी मेजर अगर सिचुएशन है आपका, तो आप उसके लिए आप खुद से दवाई नहीं लोगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे, एक्सपर्ट के पास जाओगे। उसी तरीके से जब आप शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, आपने ओवर द काउंटर टैबलेट्स के जैसे थोड़ा बहुत SIP और ये वगैरह कर लिया, लेकिन जब ये एक अपने लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट, हमारे फैमिली के लिए इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो जब वो वेल्थ अपना 5, 10, 50, 25, 50 लाख तक पहुंचता है, तो एक सारथी, एक एडवाइजर का होना बहुत ज़रूरी है, जो इस इमोशंस से बाहर निकल के जो है हमको सही तरीके से गाइड करे। तो मेरा ये मानना होगा कि मैं समझता हूँ कि जितने भी कैंपेन्स चले, जितने भी हम लोगों को बताए, हम इन्वेस्टर अवेयरनेस, कहाँ क्या करना है, प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट क्या होता है, ये सिखाने से ज़्यादा अगर ये सिखाए कि आपके लिए ये जो लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए आप एक ट्रस्टेड एडवाइज़र, एक क्वालिफाइड एडवाइज़र के पास आप सलाह लें। ये शायद मेरा एक उम्मीद है और एक होप है कि ऐसा हो जाए तो इंडियंस विल बेनिफिट अ लॉट। क्योंकि मैं खुद 30 साल के एक्सपीरियंस में 25-26 साल अभी म्यूचुअल फंड्स में रहा है, और मैंने ज़िंदगी में इक्विटी शेयर नहीं खरीदा है कभी भी। मेरा सारा जो इन्वेस्टमेंट्स है मेरे एडवाइज़र के थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ, एक फाइनेंशियल प्लान को लेकर के। मेरे बच्चों की पढ़ाई, शादी, रिटायरमेंट, सबके लिए जो मैंने प्लान की है पिछले 14-15 सालों से, मैं भी खुद एक एडवाइज़र को यूज़ करता हूँ। क्योंकि नहीं अगर मैं यूज़ किया तो मुझे इतना एक नॉलेज तो है कि हम फियर और ग्रीड में फंस जाएंगे, क्योंकि खुद के पैसे के साथ तो इमोशनल अटैचमेंट तो होता ही है। तो इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए एडवाइज़र इज इंपॉर्टेंट। कि मैं लोगों को बताता हूँ तो मैं खुद भी ये सलाह लेता हूँ कि मेरा भी एडवाइज़र है। ठीक है सर, मतलब हमने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें एक अच्छे एडवाइज़र के साथ साथ एक अच्छी चीज़ की भी, एक अच्छी एडवाइस की भी ज़रूरत है। और यस, बिहेवियरल फाइनेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर एक क्वेश्चन और है कि आजकल जैसे म्यूचुअल फंड के हम ग्रो कर रहे हैं, बट आर इन्वेस्टर रियली अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर इन्वेस्टिंग इन एंड आर सिंपली फॉलोइंग टाइप? एक चीज है कि हर्ड बिहेवियर जिसको बोलते हैं, कि सब लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ओपिनियंस पढ़ते हैं और उसके साथ साथ लग जाते हैं कि इस प्रोडक्ट को खरीदो, उसको खरीदो, तो ये ज़्यादा है आज की तारीख में। और लोगों को ये एक कॉमन क्या बोलते हैं कि ट्रेंड है। और अगेन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ऐसा ट्रेंड है, हर जगह पे हर्ड बिहेवियर की बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसी के साथ लगना, ये हर जगह पर है। और ये भी एक शायद एक डिफिकल्ट चैलेंज है कि लोग जब मार्केट अच्छा कर रहा होता है, उसके रिटर्न्स की न्यूज़ जब न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, तब जाकर के वो पैसे लगाने की सोचते हैं। आप देखिए कि तो मेरा ये मानना है कि लोगों को इसके बारे में सही तरीके से सोचना कि ये हमारी लाइफ टाइम की ये जो हम पूंजी बना रहे हैं, हमारी जो हम जितने भी निवेशक हैं उनके जो हम निवेश कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हर आदमी, हर शख्स जो इन्वेस्ट कर रहा है, रियल एस्टेट में तो किया ही होगा और गोल्ड में भी तो किया ही होगा। तो हम गोल्ड और रियल एस्टेट खरीदते कैसे हैं? क्या हम गोल्ड और रियल एस्टेट को सबसे ऊंचा लेवल तक
पहुंचने के लिए रोकते हैं, या अगर हमें लगता है कि ये गोल्ड का प्राइस कम हुआ हम डिस्काउंट में लेते हैं, रियल एस्टेट हमें अच्छा वैल्यू में मिल रहा है तो हम रियल एस्टेट तब देखते हैं, ना कि जब वो बढ़ रहा है और बोले कि नहीं हम इन्वेस्ट करेंगे लेकिन थोड़ा और बढ़ने दो उसके बाद हम इन्वेस्ट करते हैं। हमें डिस्काउंट चाहिए होता है। गोल्ड में और रियल एस्टेट जो इतनी बड़ी पार्ट है हमारी लाइफ की और इन्वेस्टमेंट्स की, जो हम बहुत सालों से सदियों से हम जानते हैं, उसको हम खरीदते हैं कि जब उसका प्राइस हमको वैल्यू लगा या उसमें कोई डिस्काउंट आया। म्यूचुअल फंड्स एक चीज है जहां पे ये हम सोचते ही नहीं है, जितना ऊपर बढ़ा तब हम खरीदने लगते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर लोगों को ये पता चले कि ये म्यूचुअल फंड्स जो है हमारी इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड और रियल एस्टेट जैसा है, जब इसका भाव गिरता है तब खरीदना बनता है, ये अगर एक जो थॉट प्रोसेस अगर लोगों में आए, आई थिंक पीपल विल बी वेरी मच बेनिफिटेड। कि इंडिया स्टोरी सब जानते हैं, इंडिया में अच्छे कंपनियां हैं, अच्छे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं, अच्छे एडवाइजर्स हैं आपको गाइड करने के लिए, लेकिन आप जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस जो है, जो आपका क्वेश्चन था कि सब लोग लग जाते हैं झुंड में कि जब वो कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब मार्केट करेक्शन आता है तो डर जाते हैं लोग और इन्वेस्ट नहीं करते या रिडीम करते हैं। मेरा ये मानना है कि जब वो मार्केट करेक्ट होता है या वो मार्केट डिस्काउंट पे है तो उसे तब खरीदना चाहिए ज्यादा, और या तो सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट करते रहे। तो मैं मानता हूं सही बात है कि लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जैसा जैसा अवेयरनेस बढ़ेगा तो लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब ये अच्छी इन्वेस्टमेंट्स को हम डिस्काउंट पे खरीदे, और तब खरीदे जब मार्केट की करेक्शन फेज में हो। यानी कि जब मार्केट में सेल लगे सेल परचेज करें। बिल्कुल सही बात। मार्केट की सेल जब मॉल्स में सेल लगती है उसको अवॉइड करके इस सेल में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल यही करें। सर आजकल सेबी ना रेगुलरली कुछ ना कुछ मूव्स कर रहा है। मैनी एडवाइजर्स फील ओवरवेल्म्ड बाय फ्रीक्वेंट रेगुलेटरी चेंज। फ्रॉम योर वेंटेज पॉइंट, व्हाट इज द रियल इंटेंट बिहाइंड सेबीज रीसेंट मूव्स? मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अगर पूरी दुनिया की ली जाए तो आज इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जिस जगह है वो सेबी की वजह से है और रेगुलेशंस की वजह से है। हर कोई फील्ड में एक इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट रहना जरूरी है। अब हम इसको डिबेट कर सकते हैं कि ये ज्यादा है या कम है, लेकिन अगर आप देखें तो आज आपको सोशल मीडिया में हो, न्यूज़ में हो, आपको बहुत ये सुनने को मिलता है कि किसी के बैंक से पैसा लूट गया, यूपीआई गलत क्लिक कर गया और मेरा पैसा खो गया, मुझे कुछ स्कैम हो गया, पैसा निकल गया बैंक से। आपने कभी म्यूचुअल फंड में सुना है ये? नहीं होता, कभी नहीं होता। तो इस तरीके का रेगुलेशन उन्होंने बनाया हुआ है, इस तरीके से वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है कि 500 250 रुपए की अभी छोटी सिप है, 500 रुपए की, 1000 रुपए की सिप है, और 50,000 और 5 लाख की भी सिप वाले जो इन्वेस्टर्स है, सारों को प्रोटेक्ट किया हुआ है सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से। और मैं मानता हूं कि कोई भी इंडस्ट्री में ट्रस्ट लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, ये काम होता है रेगुलेटर का। और आज अगर लोग फाइनेंशियलाइजेशन बोले इंडिया में कि लोग ज्यादातर मार्केट्स में इन्वेस्ट अगर कर भी रहा है तो वो इसी ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की वजह से, जो सेबी के रूल्स की वजह से है। जैसे कि मैंने कहा, आप डिबेट कर सकते हैं कि यार क्यों ज्यादा है, कम है, और हर रेगुलेटर फीडबैक लेकर के, और सेबी बाकायदा फीडबैक लेते हैं इंडस्ट्री से कि हम इसको और अच्छी तरीके से आपका बिजनेस ईज के लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो एक एडवाइस बेस्ड रेगुलेशन ही है। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी भी बैठती है हर कोई चीज में, और रिकमेंडेशंस को वो देख करके वो रेगुलेशंस लाता है। तो आई थिंक दैट इट इज क्रिएटिंग अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर इंडस्ट्रीज ग्रोथ। सो मीन्स कि रेगुलेशंस आ रही हैं, थोड़े से हमारे लिए चैलेंजेस आ रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में हमारे लिए वही फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी सर। बिल्कुल, क्योंकि वहीं से ट्रस्ट पूरी पॉपुलेशन की बनेगी इस सेक्टर में। आप मान के चलिए कि अगर आपको हर 2-3 साल में कोई फ्रॉड या कुछ आपको सुनने मिल रहा है तो क्या ट्रस्ट बनेगी पॉपुलेशन में? बिल्कुल नहीं ट्रस्ट बनेगी। तो वो वापस जाएंगे कि भाई हम जो है चिट फंड में लगा देंगे और हम गोल्ड ही खरीदेंगे या लैंड ही खरीदेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और आज इंडियन बैंक्स को बोलो, आरबीआई के तौर पे या सेबी की आप रूल्स एंड रेगुलेशन देखो, तो इट हैज ओनली बिल्ट ट्रस्ट इन इंडियन सिटीजन्स दैट दे कैन trust the financial institutions of India.
So, sir, within PGM India, what are the some of the toughest long-term challenges you foresee for the mutual fund industry beyond just market volatility? मार्केट वॉलेटिलिटी तो एक इनहेरेंट पार्ट तो है ही एज फार एज म्यूचुअल फंड्स इज कंसर्न्ड एंड और एनी मार्केट इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न्ड. चैलेंजेस अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि आज 78 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड है इंडिया में. हाँ, और 8.5 करोड़ लोग फाइल भी करते हैं टैक्सेस. लेकिन यूनिक इन्वेस्टर्स अगर म्यूचुअल फंड को देखे तो इट इज ओनली अबाउट 5 करोड़, राइट. तो आई फील कि पेनिट्रेशन, acceptability and penetration, information going to people feeling that they should be putting money into a safe, professionally managed, transparent, regulated industry is, I think, one of the challenges for us. वो इसलिए क्योंकि हम जब भारत की आत्मनिर्भरता के बारे में बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता के लिए हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन, पूरी कंट्री की जो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति जो है और फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बहुत फाउंडेशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ पर वो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा? अगर लोग इंडिया की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे, भले वो सेफ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में करे या इक्विटी के मार्केट्स में करे, माध्यम से करे, अगर वो नहीं करेगा तो इंडिया की ग्रोथ के लिए किसको पैसा लगाना पड़ेगा? गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग करनी पड़ेगी, उस बोरोइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो अगर ऐसा हुआ तो फिर वो प्रोग्रेस के लिए कैसे काम करेंगे? रिफॉर्म्स के लिए पोर्ट बनाना, रोड बनाना, इस पे पैसा लगाना तो है उनको, तो इनको बोरो करना पड़ेगा ये सब करने के लिए. जो प्रोग्रेस इंडिया में आप देख रहे हैं तो उसके लिए तो उनको बोरो करके पैसा लगाना पड़ेगा. बेटर इज कि इंडियन पॉपुलेशंस मनी इज बीइंग पुट इनटू ऑल ऑफ दिस ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन रियल एस्टेट, इन केमिकल्स, इन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, डिफेंस जो है. As more and more Indians invest, then the government can actually say that मुझे इतनी borrowing करने की जरूरत नहीं है because Indian money is now being used for more and more Indians are participating into that growth, और उस growth की profit भी उनके पास आ रहा है, and they can focus on strategic parts of India as far as defense is concerned, education is concerned, healthcare is concerned, or for the entire population of India, they can put more focus on spending over there. So I believe that this is the challenge for us as a ecosystem, that we are able to tell people that you can trust this system. It is well regulated, it is well transparent, and participate in putting your money instead of locking it up in unproductive assets. Put more money to participate in India. So I think mutual funds are the best tool for participating in Indian economy. I believe so. I think there are market linked products, whether they're in any form and format. I think that depending on the risk appetite, depending on the time frame, depending on the unique situation, households should participate. So in a nutshell, we can say that we mutual fund distributors are freedom fighters for India in span of this thing, because we are actually asking Indian people to invest in Indian There equities. is no doubt. There is no doubt. Tarun, think about it. Everybody will agree कि आज भारत जो है इन वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री है in terms of the proportion of the young people. We are the country which has the maximum proportion of young people. अब जो बड़े बड़े देशों में जो एडवांस्ड कंट्रीज है वहां पे आज के तारीख में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम रिटायरमेंट की है, प्रॉब्लम पेंशन की है, प्रॉब्लम ओल्ड एज की है, कि वहां पे उतने यंग पॉपुलेशन नहीं है. तो अगर हम आज से हमारी युवा पीढ़ी को हम अच्छी सही तरीके से गाइड करें, द गवर्नमेंट, द finance ministry, regulators, advisors, mutual funds, if we can guide our young people to be atmanirbhar by making the right kind of long-term investments for themselves, India will be the strongest country in the world in the future, because it will not have to worry about old age problems that have got created at a later stage. क्योंकि हमने लोगों को अब से ही गाइड करना शुरू किया हुआ है कि that by 2030, 2050, as the proportion of you start becoming older, you are independent financially and not dependent on the government or anybody else for your financial security and financial freedom. So it is definitely a
ग्रेट सर्विस दैट वी हैव टू लुक एट इट. फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये एक कंट्री के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी गाइड पीपल द राइट वे. So, sir, it brings me another question. So, what we as a AMC, you as a AMC doing for retirement planning, and what should do for retirement planning, sir? ये बहुत बड़ा एक एरिया है लोगों के लिए, रिटायरमेंट. और तरुण, ये एरिया इम्पॉर्टेंट इसलिए है और ये एरिया पीजिम ने थोड़ा सा फोकस करने के लिए इसलिए चुना है क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी में जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, फॉरेन ट्रिप पे जाना, बिजनेस शुरू करना, रिटायरमेंट, ये सारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं लोगों के. You will get a loan for every financial goal of your life except retirement. Yes, very well said. Retirement is the only financial goal of your life for which you do not get a conventional loan. लेकिन लोग फोकस करते हैं कि मैं SIP करूंगा बच्चे के लिए क्योंकि उनकी पढ़ाई है, आगे शादी है, घर है, गाड़ी है, इनके लिए करते हैं. लेकिन आप समझिए कि आपने बच्चे के लिए SIP किया और आपको लगता है कि जब तक बच्चा 18 की हो जाए और बेटी जो है शायद शी विल गो अब्रॉड फॉर हर स्टडीज, तो आपने सालाना फीस के लिए आपने प्लानिंग की कि शायद 20-25 लाख हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है. और आपके बच्चे को हार्वर्ड में एंट्री मिली तो वो तो 20-25-30 लाख पे तो नहीं होगा, 50-60 लाख लगेगा शायद, या उससे ज़्यादा लगेगा जब वक्त आएगा. बट आप अपने बच्चे के ड्रीम्स को आप फुलफिल कर सकते हैं बिकॉज यू कैन टेक एन एजुकेशन लोन. जब आपको घर खरीदना है और आपको लगे नहीं 3 बेडरूम का नहीं 4 बेडरूम लेते, तो आप होम लोन ले सकते हो, कार लोन ले सकते हो, बिजनेस लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो. रिटायरमेंट लोन है ही नहीं. तो इस चीज पे फोकस रखना और उसको प्रायोरिटी में लाना, स्पेशली यंगस्टर्स को, ये एक वजह है और एक रीजन है क्योंकि हम पीजिम इस सब्जेक्ट के बारे में हम ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं. दूसरा, आपने पूछा कि रिटायरमेंट के लिए करना क्या चाहिए. अब लोग क्या करते हैं, लोग ये कहते हैं कि अच्छा मुझे जल्दी से रिटायर होना है, मुझे 45 पे रिटायर होना है या 40 पे रिटायर होना है या 55 पे. और लोग जो 40-50 पहुंचे हुए जो रिटायरमेंट के बारे में अब सोच रहे हैं, उनके अंदर बहुत एंग्जाइटी होती है कि यार मेरे पास वर्किंग लाइफ शायद 8 या 10 साल होगा, क्या इसमें इतनी पूंजी बनेगी और क्या कॉर्पस बनाना है. उसकी एंग्जाइटी कि ऑनलाइन गए, कोई कैलकुलेटर ढूंढ लिया कि मुझे रिटायरमेंट के लिए कितना जरूरत पड़ेगा और नंबर आ गया 8 करोड़, 14 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, और लोग बोलते हैं कि यार इतना पैसा कैसे बनेगा. ये एंग्जाइटी रहती है. तो मैं इस चीज के लिए मैं 2-3 चीज कहूंगा इस रिटायरमेंट को किस तरीके से हैंडल करना है. एक है कि पीजिम आज एक ही ऐसा AMC है जो इंडिया में रिटायरमेंट का रिसर्च करता है. नीलसन NIQ के साथ रिटायरमेंट रिसर्च हमने अभी 2 रिपोर्ट्स निकाली है, 2020, 2023, और तीसरा वाला रिपोर्ट अब काम चालू है, 2025 अक्टूबर-नवंबर तक हम लॉन्च करेंगे. तो यहाँ पे हमें कुछ जो है हमारे लोगों से और जिनको हमने सर्वे किया, हमने उनसे थोड़ा सा एक आइडिया या इंसाइट लिया कि जो लोग रिटायरमेंट को लेकर के बिल्कुल निश्चित है, जो कॉन्फिडेंट है, उनमें ऐसा क्या अलग है बाकियों से. बहुत सारे लोग एंजाइटी में रहते हैं और ये कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है रिटायरमेंट का. तो अगर मैं कहूं कि क्या ऐसे प्रमाण है, एग्जाम्पल्स है कि इन लोगों में क्या फर्क है. नंबर 1, ये लोग अपने रिटायरमेंट को एक हैप्पी गोल की तरफ देखते हैं. दे लुक एट देयर रिटायरमेंट एज अ हैप्पी इवेंट. सबकॉन्शियसली 90% ऑफ पीपल लुक एट रिटायरमेंट एज अ अनहैप्पी इवेंट. आप ये साइकोलॉजी में ये मान के चलिए कि जब लोग इन्वेस्ट करते हैं, पीपल लाइक टू ओनली इन्वेस्ट फॉर हैप्पी गोल्स. ये एक रूल है, एक साइकोलॉजिकल रूल है कि जब हम पैसे लगाते हैं किसी चीज के पीछे तो हम खुशी के लिए लगाते हैं, राइट. सो पीपल ओनली इन्वेस्ट फॉर हैप्पी गोल्स. और आप देखिए उसके एग्जाम्पल, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, घर, गाड़ी, हॉलिडे, ये सारे हैप्पी गोल्स होते हैं. रिटायरमेंट को लेकर के लोगों को लगता है अरे यार मेरा कोई पर्पस नहीं रहेगा, कोई मुझे रेस्पेक्ट नहीं करेगा, पता नहीं शायद मैंने जो देखे मेरे फूफा, मेरे अंकल है, उनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हेल्थ कंडीशंस हो सकती है, तो और मेरे पास कॉर्पस नहीं होगा, मैं अपने बच्चों पे निर्भर रहूंगा. तो ये अनहैप्पी बन गया.
तो हमारे सर्वे से जो लोग प्रिपेयर्ड है रिटायरमेंट के लिए, उन्होंने ना पहले दिमाग में रिटायरमेंट को एक हैप्पी गोल बनाया हुआ है कि नहीं, मैं अपने लाइफ में ये चीज करना चाहता हूं, मैं रिटायर होना चाहता हूं और मैं योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहता हूं, मैं छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं और मैं सिखाना चाहता हूं, कोई कॉलेज में या स्कूल में कुछ करना चाहता हूं, या मेरे पास ये स्किल है, ये हॉबी है, मैं ये इस चीज को लेके मैं आगे अपना पैशन पे काम करना चाहता हूं। तो ये लोग जो है बहुत प्रिपेयर्ड रहते हैं रिटायरमेंट के लिए। तो फर्स्ट रूल, रिटायरमेंट को आप किस तरीके से देखते हो, मेक इट अ हैप्पी गोल। फाइनेंशियल फ्रीडम करके सोचो उस चीज के लिए और उसको एक हैप्पी गोल बनाओ। दूसरा, रिटायरमेंट का सबसे बड़ा रिस्क क्या कॉर्पस होगा, कितना होगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये नहीं है। उसका सोर्स जो है वो फंडामेंटल सोर्स ये है कि आपका सबसे बड़ा रिस्क रिटायरमेंट का ये है कि आप पैसे कमाने के तरीके सिर्फ आपके पास एक है। जो आपका मेन स्किल है, आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टरी करके पैसा कमाते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो यही स्किल है जिससे आपकी सैलरी आ रही है, तनख्वाह आ रही है। तो आपको पैसे कमाने के तरीके सिर्फ एक। और जिन लोगों को रिटायरमेंट की एंजाइटी नहीं होती, उनके पास पैसे कमाने के तरीके होते हैं दो। एक जो उनका स्किल है, जो उनका प्रोफेशन है, और दूसरा एक और स्किल उनके पास, अलग सा एक स्किल ऐसा होता है जो उनका स्किल है जिनसे भी वो कमा सकते हैं। कि फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनना है, आपको पेट्स अच्छे लगते हैं, हमारे पास घर है तो हम पेट ग्रूमिंग का छोटा सा बिजनेस घर में किया। द लेडी ऑफ द हाउस इज मोर यूजुअली टैलेंटेड देन द मैन ऑफ द हाउस। तो आप कोविड में देखिए कितने लोगों ने बेकिंग शुरू की या कुकिंग शुरू की, होम टिफिन सर्विसेज शुरू की और पैसे कमाने लगे। द पावर ऑफ अर्निंग एडिशनल मनी, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, नॉट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट बट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम अ सेकेंड स्किल, is the most powerful way of never worrying about retirement. Because that secondary source will always be something that you're passionate about and that you like and you do well, that you can continue for a lifetime. It is not like your job which you want to stop at 45, not want to see your boss's face and get home and sit in front of the TV. So I do think that that is the second thing. Have a secondary skill from which you can earn. Don't worry about the corpus. You will have enough money to last you a lifetime if you have two skills from which you can earn. And the third thing is that another risk about retirement is that people are living longer. आपकी जो लाइफ है वो बढ़ता जा रहा है, और आज अगर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि काफी सारे बच्चे जो है 100 हिट कर जाएगा। आज हमारी बिरादरी में, हमारी फैमिलीज में कितने लोग 90 क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर आप इतने लंबे के लिए रहोगे तो यू हैव टू बी ऑक्यूपाइड, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंसेस इन रिटायरमेंट इज हेल्थ एक्सपेंसेस। तो द थर्ड थिंग आई वुड से इज दैट you have to take care of your health. You have to be conscious about how do I want to live my retirement years and live longer happily. The answer is also to be fit and healthy in the same time, right? So हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। आपके पास बैंक में 20 करोड़ पड़ा हुआ है लेकिन आप बिस्तर पे पड़े हो किसी रीजन के लिए, दैट इज नॉट अ हैप्पी सिचुएशन। वेल बीइंग जो है, एंड इफ यू आर ऑक्यूपाइड इन अ पैशन, आपका जो सेकंड स्किल है जिस पे आप काम कर रहे हो, तो आप मेंटली खुश रहते हैं, आप मेंटली पर्पसफुल रहते हैं, आप मेंटली ऑक्यूपाइड रहते हैं। दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर बॉडीज हेल्थ ऑल्सो, दैट यू आर एक्चुअली मोर हेल्दी। तो इसके 2-3 बेनिफिट्स होते हैं इस तरीके से। सो आई वुड से फर्स्ट, thinking about what you want to do in your retirement and making it a happy, purposeful retirement is the first step. Second step is thinking of your source of income and not just your investments, but do you have a second skill that you can make some money from? 5,000, 3,000, 10,000, 15,000 जो आप एक SIP करते रह सकते हो. You'll never be dependent on your kids if you can do that. And even if your corpus is not as much as you thought, कम भी कॉर्पस है लेकिन ये सेकेंडरी इनकम से कॉर्पस बनता जाएगा, ये एक है. और थर्ड है कि अपना हेल्थ पे ध्यान दे थोड़ा सा. आई थिंक दिस इज व्हाट वी वुड रेकमेंड. थोड़ा सा अनकन्वेंशनल एडवाइस है जो लोग ज्यादातर सुनते नहीं है, बट आई थिंक आवर रिसर्च हैज हेल्प्ड अस एंड आवर वर्क इन दिस एरिया, एंड प्रूडेंशियल ग्लोबली इज आल्सो वेरी फोकस्ड अराउंड रिटायरमेंट, एंड आई थिंक दीज आर what I can say as advice or recommendation. As a AMC, do you have any specific fund for retirement? And if yes, is there any difference between the other AMCs?
सेबी की पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कैटेगरी ही है रिटायरमेंट का, जिसमें 5 years क्लोज्ड एंडेड होता है और अप टू द एज ऑफ 60, इन द सेंस दैट इफ यू आर 60 बिफोर द 5 year लॉक इन यू कैन रिमूव द मनी, बट अदरवाइज 5 years का उसमें लॉक इन होता है, हर रिटायरमेंट प्रोडक्ट में वो होता है। तो उस कैटेगरी में हमने भी फंड लॉन्च किया पिछले साल। सो वी हैव अ प्रोडक्ट। द ओनली आई वेल फ्रॉम अ डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड सिंपली से दैट द वे हमने सोचा रिटायरमेंट के बारे में कि अगर आप यंग हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हमें जो मल्टी कैप का जो स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो हमें लगता है कि बेस्ट सूटेड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि मल्टी कैप का जो सेबी की रेगुलेशन और रूल है वो ये है कि आपको बड़े कंपनियां, जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उसमें मिनिमम 25 होनी चाहिए, मिड कैप कंपनियों में मिनिमम 25 होनी चाहिए, और स्मॉल कैप कंपनियों में भी मिनिमम 25 होनी चाहिए। और उस टोटल 75% के बाद जो फाइनल वाला 25% है वो फंड मैनेजर डिसाइड कर सकता है कि आपको कौन से कैटेगरी में उसको बांटना है। तो ये मिनिमम 25% लार्ज, मिड और स्मॉल में रहना, ये हमारे हिसाब से एक अच्छा स्ट्रक्चर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आपने कोई फ्लेक्सी कैप या डिवर्सिफाइड फंड ले लिया तो ज़्यादातर इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज कैप या हो सकता है बहुत कम स्मॉल कैप मिले और कम मिड कैप मिले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। तो ये मल्टी कैप का स्ट्रक्चर इज अ feature of design feature, you can say, of the PGIM retirement fund, which we think is beneficial. Great, sir. Sir, there is a lot of buzz about passive investing, but in a market as emotionally driven as ours, is India is really ready for it, sir? हम जब ऐसे चीज़ों के बारे में सोचते हैं तरुण, आई थिंक वी थिंक ऑफ इंडिया एज वन एंटिटी, बट इन्वेस्टर्स हर तरीके के होते हैं और इन्वेस्टर्स का रिस्क एपिटाइट अलग अलग होता है। तो हम किसी चीज को एक कॉमन ब्रश को यूज करके सब पे लागू नहीं कर सकते। होगा कोई इन्वेस्टर्स ऐसा जिसको एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं जरूरत है, कोई फंड मैनेजर को फॉलो करना, उसने क्या खरीदा, क्या बेचा, क्यों किया, क्यों नहीं किया, ये नहीं चाहिए, और वो इंडेक्स और ईटीएफ से बहुत खुश है कि इसमें कम सोचना पड़ता है और वही इक्विटी मार्केट में हमारा एक्सपोजर भी बना रहे और एक्सपेंसेस भी कम होते हैं पैसिव का। ये भी एक एडवांटेज है पैसिव इन्वेस्टमेंट का कि एक्सपेंसेस कम होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हम इस डिबेट में नहीं जाना चाहिए कि इंडिया रेडी है पैसिव्स के लिए कि नहीं। बिल्कुल रेडी है, एक सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स रेडी है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स दुनिया भर में पैसिव फंड्स यूज करते हैं। हाँ, एक एडवांटेज एक्टिव फंड्स का ये है बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड बिकॉज इंडिया स्टिल हैज अ लॉट ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज which are becoming bigger and bigger and bigger, so one can participate in that growth story of India through these mid and small cap companies compared to large cap companies. तो वो एक एडवांटेज है एक्टिव का। और उसी तरीके से पैसिव का भी एडवांटेज है कि उसमें एक्सपेंसेस लो होता है, उसमें कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, तो वो सिंपल इंडेक्सेस होते हैं। तो आई बिलीव दैट while India is still a market which is very good for active managers and active funds, but I believe that it depends on the customer's objective, किस टाइप का इन्वेस्टर है, क्या रिस्क प्रोफाइल है और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसमें बिल्कुल पैसिव्स भी फिट होते हैं। तो इट इज नॉट ईदर और, इट इज बोथ। ग्रेट सर। सर, डू यू थिंक आजकल जैसे एआई बहुत चल रही है, सो कैन एआई इवेंचुअली को-मैनेज और इवन फुली मैनेज एक्टिव म्यूचुअल फंड्स? मैं मानता हूं कि यार इस चीज के बारे में ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है कि जो पूरी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एआई का इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में किस किस तरीके से इम्पैक्ट होगा और इन्वेस्टिंग खुद एआई करेगा नहीं करेगा। ये शायद लोग ओपिनियन तो देंगे, लेकिन हमें सिर्फ बाद में ही पता चलेगा कि इसका कितना यूज है और इसमें कितना यूज नहीं है। मेरा मानना ये है कि एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हमारे प्रोडक्टिविटी के लिए, हमारी एफिशिएंसी के लिए हेल्प करेगा। तो हम ये जो एआई होगा इन्वेस्टमेंट फील्ड में और आज ऑलरेडी है, वो एक एनेबलर है हमारे काम को और भी एफिशिएंटली करने के लिए। जैसे कि अगर किसी फंड मैनेजर को अपने एक सेक्टर की एनालिसिस करना है तो वो रिसर्च कर रहा है, तो उसे हफ्ते भर लगता है पूरे सेक्टर की पूरी रिसर्च करके इंफॉर्मेशन डेटा निकालने के लिए। शायद एआई उसकी समरी 2 घंटे में बना दे। तो वहां से शुरुआत कर सकते हैं कि थोड़ा सा हमारा टाइम कम हो गया रिसर्च का, और फिर जो बाकी के नंबर्स हैं, बाकी जो मीटिंग्स हैं, वो हम फिजिकली करने के लिए हमारे पास टाइम बचता है। तो हमारी प्रोडक्टिविटी
एनहांस होती है. तो आई फील दैट इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड AI विल बी एन एनेबलर विच विल बी एट द बैकग्राउंड, नॉट इन द foreground. That is what I think. But I also believe that there will be enough number of companies who will look at AI in the foreground as well, saying that we will build portfolios using AI. We will do algorithmic trading with a layer of AI. We'll do a lot of things by using AI, and which is quite possible to do also. But I believe that that will just be another category. Is it going to take over the whole thing? No. तो आई थिंक जैसे कि हम एडवाइजर्स के बारे में बात करते हैं तो 10 साल पहले फिनटेक्स नहीं था, अब वो एक नया जरिया बन गया, एक कन्वीनियंस का जरिया बन गया फॉर मेनी यंग इन्वेस्टर्स टू यूज फिनटेक. हैज दैट कंप्लीटली किल्ड कि एडवाइजर का काम और एक हैंड होल्डिंग या गाइडेंस का काम? नहीं. तो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं. तो मेरे ख्याल में ये दोनों को एग्जिस्ट मॉडल्स को एग्जिस्ट करेंगे. So human touch is always necessary. Human touch is always necessary. In financial advice, I definitely believe that human touch is very, very necessary. और वो इसलिए है क्योंकि जो ट्रस्ट जो चीज़ है इन ह्यूमन बींग्स, वो ट्रस्ट में जब जिस वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया हुआ है, उस ट्रस्ट में बिल्कुल क्रेडिबिलिटी, कम्पिटेंसी, इंटेग्रिटी, एम्पथी, ये सारे फैक्टर्स तो होनी चाहिए. लेकिन इस फैक्टर्स के साथ साथ वल्नरेबिलिटी भी एक फैक्टर है ट्रस्ट का. और वल्नरेबिलिटी का डेफिनेशन ये है कि एक एडवाइजर का करेज और ब्रेवरी इतना होना कि किसी कस्टमर ने क्वेश्चन पूछ लिया तो ये बोलना कि सर इसका आंसर मुझे नहीं आता, मैं ढूंढ के वापस आऊंगा आपके पास. लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ आंसर दे ही देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्या अगर इन्वेस्टर को लगा कि यार मुझे इसका आंसर नहीं पता तो क्या होगा. आप मान के चलिए कि जब वल्नरेबिलिटी कस्टमर्स अपने एडवाइजर में सेंस करते हैं कि ये कोई बड़ा ज्ञानी नहीं है, उसे भी कुछ चीजें अपने आप रिसर्च करके वापस आना पड़ता है कि यार ये बिटकॉइन मुझे पता नहीं है, मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं आपके पास वापस आऊंगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है. यू कैन से दैट. लेकिन टेक्नोलॉजी को अगर देखिए, गूगल में जाइए, कहीं और जाइए, उसमें when you ask a question it will always give you an answer. There is never the Google will never tell you, oh sorry I don't know the answer to this question. वो 1 लाख लिंक्स तो दे ही देगा. तो एक हद तक वो एफिशिएंसी के लिए ठीक है, बट ट्रस्ट के लिए इंसान का होना बहुत जरूरी है. So as a mutual fund distributor, so I see a gap between AMC vision and ground level realities. What more can AMC do to empower and support MFDs like us? मैं समझता हूं कि एक चीज जो पीजिम कर रही है, फॉर इंस्टेंस वी हैव अ डिपार्टमेंट, वी आर प्रोबेबली द ओनली एसेट मैनेजर हु हैज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां पे हम वी हैव अ PhD लेवल पर्सन हु इज हेडिंग दैट बिजनेस एंड लुकिंग एट बिहेवियरल साइंस. और बिहेवियरल साइंस को किस तरीके से हम हमारे एडवाइजर्स के और क्लाइंट्स के आउटकम्स को बेटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम फोकस कर सकते हैं साइंस पे. तो मेरा ये मानना है कि हम अभी भी 50s और 60s में फंसे हुए हैं, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि नंबर्स जो है, जितना हम नंबर्स के बारे में बात करें तो लोग कन्विंस हो जाएगा, लेकिन लोग कन्विंस साइकोलॉजी और बिहेवियर और इमोशन से होते हैं. तो बिहेवियरल साइंस को थोड़ा और फोकस में लाना और इसके साइंस के बारे में समझना और इस साइंस को यूटिलाइज करना अपने इन्वेस्टर्स को हेल्प करने के लिए, ये किस तरीके से ये वैल्यू ऐड हमारे पार्टनर्स को हम कर सकते हैं, इस पे फोकस रखना इंडस्ट्री के लिए भी जरूरत है. हमने शुरुआत की है. आई एम श्योर दैट मोर पीपल विल बी एबल टू ऐड वैल्यू टू एडवाइजर्स टू से दैट वी हैव टू कीप अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स इन आवर ओन नॉलेज टू हेल्प कस्टमर्स बेटर. सर आजकल हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत इन्फ्लुएंसर्स पैदा हो गए हैं. तो सर वो फ्री एडवाइस देते हैं, फ्री में टिप्स देते हैं, सब कुछ फ्री करके करते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए, इतने साल में आप ये तो हो ही जाएगा. सो यहाँ पे सर जो क्वालिफाइड पर्सन है हु हैज पास्ड सेबी एग्जाम्स और एमफी एग्जाम, उनमें और इन्फ्लुएंसर में कुछ डिफरेंस है सर? नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि डिफरेंसेस है. डिफरेंसेस अगर है भी तो सिर्फ नियत में. मेरा ये मानना है कि जितने शायद फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स या जितने एरिया में हम यूट्यूब में वगैरह में इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, आई थिंक यू कैन नॉट डाउट देयर इंटेंशंस. वो भी खुद सोच रहे हैं कि यार मैंने कुछ सीखा है, मैं आगे सिखाना चाहता हूँ. हाँ, क्या वो सही सिखा रहे हैं ये शायद उनको भी नहीं पता, अनलेस एंड अनटिल दे डू अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन कि क्या होता है, किस तरीके से गाइड करना चाहिए. ये एडवांटेज होता है क्वालिफाइड CFP किया हुआ, CFA किया हुआ, CA या जो भी है और
NISM के ऊपर की जो सर्टिफिकेशंस किया हुआ जो एडवाइजर्स है उनको सही तरीका पता है, प्रोसेस पता है। दूसरी बात, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जब अपना काम कर रहा है तो वो हर कोई जो उनसे सुन रहा है वो उनको एक कॉमन ऑडियंस मान के चलते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं जो इन्वेस्टर्स के साथ डायरेक्टली काम करते हैं उन्हें ये पता है कि हर घर अलग होता है, हर घर की जो रिस्क एपिटाइट और रिक्वायरमेंट्स है वो अलग होता है, तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस और भी ज्यादा है। तो मैं मानता हूं कि इन्वेस्टर्स को अगर इन्फ्लुएंसर्स को सुनना है तो सुन ले अपनी नॉलेज इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए एक ट्रस्टेड एडवाइजर होना मेरे ख्याल में जरूरी है। आई डोंट फॉल्ट द इन्फ्लुएंसर्स हु हैव द राइट इंटेंशन, आई विल ओनली फॉल्ट द इन्फ्लुएंसर्स हु मे हैव अ रॉन्ग इंटेंशन ऑफ मिसगाइडिंग पीपल टू से ये स्टॉक लो, ये प्रॉफिट बनेगा, 10 दिन में ऐसा होगा, 20 दिन में ऐसा होगा, और वहां पे जो लोग बहक जाते हैं वो बिल्कुल गलत है। और वहां पे रेगुलेटर्स ने बहुत सारी रिसेंट टाइम्स में रूल्स और रेगुलेशंस लाए हैं, फाइन्स हुए हैं काफी इन्फ्लुएंसर्स को, इंपॉर्टेंट वाले इन्फ्लुएंसर्स को। तो आई थिंक लाइक आई सेड अर्लियर, रेगुलेटर इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। सर एज पर योर एक्सपीरियंस सर, आपने सर जब से इंडस्ट्री शुरू हुई थी तब से आप इंडस्ट्री के एक पार्ट एंड पार्सल रहे हैं सर जी। बहुत आपका एक्सपीरियंस है, आपने बहुत इंडस्ट्री से बड़े ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस देखे हैं। सो अगर सर मेरे पास कोई टाइम मशीन हो और आपको मैं कहूँ कि सर इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आप रीबिल्ड करिए फ्रॉम स्क्रैच विद नो लेगेसी सिस्टम, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? तरुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन किसी ने शायद पूछा नहीं है मुझसे कि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं अगर फिर से शुरुआत करूं इंडस्ट्री में तो क्या अलग करूंगा। हाँ, मुझे एक चीज़ ज़रूर लगता है कि हमने एक्सपेक्टेशन सेटिंग, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेशन सेटिंग हमने इंडियन इक्विटी मार्केट की रिटर्न्स से किया है। और ये कि हमें 12, 14, 15% मिलेगा, लोग कहते हैं, ये हम कह नहीं सकते, इसके बहुत रेगुलेशंस अभी है और कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम किस तरीके से हम प्रोजेक्शंस कर सकते हैं वगैरह। लेकिन एक्सपेक्टेशन सेटिंग की बात है, ये रिटर्न्स पे फोकस हुआ एक्सपेक्टेशन सेटिंग हुआ है। और मैं अगर इस इंडस्ट्री को पूरे स्टार्टिंग से बिल्ड करूं तो मैं बिल्ड करूंगा लोगों में ये बोलते हुए कि सर यूनिट्स खरीदिए, परफॉर्मेंस मत देखिए। परफॉर्मेंस तो आएगा, वो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन आप क्या यूनिट्स खरीदेंगे इस पे फोकस रखिए और यूनिट्स का जो बैलेंस है आप बढ़ाते जाइए। और उसके लिए मैं आपके पीछे हूं कि मैं आपका रिसर्च करके बताऊंगा कि कौन से यूनिट्स आपको खरीदने हैं आपके गोल्स के लिए। अब देखिए, जब हम गोल्ड खरीदते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमने 10 लाख या 5 लाख या 20 लाख गोल्ड का इन्वेस्ट किया, हम बोलते हैं कि हमने 2 तोला खरीदा या 10 ग्राम खरीदा या 50 ग्राम की गोल्ड खरीदा। हम रियल एस्टेट जब खरीदते हैं हम ये नहीं बोलते हैं कि, बोलते हैं लेकिन ये नहीं करते हैं कि हमने 4 करोड़ या 5 करोड़ या 2 करोड़ जो भी किया, हम ये बोलते हैं कि यार हमने 400 स्क्वायर फीट का, 4000 स्क्वायर फीट का घर लिया है या 1 एकड़ की जमीन ली है, आधे एकड़ की जमीन ली है, ये गुंथा, ये जो भी है, यूनिट्स में बात करते हैं हम जब हम एसेट्स के बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स को मैं अगर फिर से मैं शुरू करूंगा तो मैं म्यूचुअल फंड्स को भी यूनिट्स से वापस से शुरुआत करूंगा कि आप यूनिट्स पे फोकस रखो, कि आप यूनिट्स इकट्ठा करते जाओ। और अगर ये हुआ होता तरुण, तो आप मान के चलिए कि जब डिस्काउंट होता है मार्केट में तो कस्टमर अपने आप से लाइन लगाएगा कि डिस्काउंट चल रहा है, चलो और यूनिट्स मिल जाएगी, तो आप बताइए थोड़ा और यूनिट्स खरीद लेते। यहाँ पे उल्टा हो गया, परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस किया तो जब मार्केट ऊपर में है तो हम उसके पीछे भागते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा होता कि अगर हमने यूनिट्स का जो स्टोरी है उसको फोरफ्रंट में लाता और परफॉर्मेंस को सेकेंडरी या थर्ड ये होता। देखिए, ये जब इंडस्ट्री शुरू हुआ इसका नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बट हम कहीं ना कहीं इस जर्नी में ना यूनिट्स के बारे में भूल गए। और ये पूरा जो एक इंडस्ट्री है ये है अच्छे यूनिट्स को कलेक्ट करते रहना। तो सर अब से हमारी सेल्स भी होनी चाहिए सर, लेट्स एक्यूमुलेट यूनिट्स। दैट इज करेक्ट। सो लेट मी कम टू द माय लास्ट क्वेश्चन सर, व्हाट्स मोस्ट अनकंफर्टेबल ट्रूथ अबाउट द इन्वेस्टर बिहेवियर और म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम दैट नो वन टॉक्स बट यू हैव सीन अप क्लोज? आई वुड से कि, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है तरुण वो ये है कि दुनिया भर में, ये इंडिया की बात नहीं है, दुनिया भर में हम बिलीव करते हैं कि हमें इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। और
रिसर्च ये कहता है कि इन्वेस्टर लिटरेसी बढ़ानी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी तो बढ़नी चाहिए, इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ाने की जितनी चीजें हैं, इट इंक्रीजेस योर अवेयरनेस विदाउट इंक्रीजिंग योर कैपेबिलिटी. Investors become overconfident, they become fund managers because of this awareness. The real solution is that the design of the product and the design of the solution should be focused कि default की designs. तो I feel that ये पूरी इकोसिस्टम में एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया ये है कि हम इन्वेस्टर अवेयरनेस के पीछे लगते हैं. फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल होनी चाहिए, but investor awareness can actually end up hurting investors because of overconfidence, of knowing something halfway and not having the capability to actually do what is right. So I think financial literacy honi chahiye, but we should be able to sit with customers and design the solutions and products which are right for them. Thank you, sir. Thank you for your valuable time, and Thank we are you, very Tarun. grateful, sir. Thank you, Tarun. My pleasure. Thank you, sir.